بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بیاد کل معلوم لک۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ کا ٹیچر سر عمران ایک اور لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا یہ لیکچر ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی نفع بخش ثابت ہوگا جو اس ٹائم 146 PM میں لانگ کورس، LCC، DSSC، GDP، AFNS، PN کیڈٹ 2020 بریوو، ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس، پولیس اور دیگر فورسز کے امتحانات میں بزی ہیں۔ ان تمام اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ اس لیکچر کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں، سنیں، اور جو کویشچنز میں لکھوا رہا ہوں وہ تمام کے تمام کویشچنز نوٹ ڈاؤن کریں اور یاد کر لیں۔ انشاءاللہ انہی کویشچن سے آپ کا امتحان پاس ہوگا۔ یہ بیٹا سامنے میں نے اپنا موبائل نمبر لکھا ہوا ہے 0323916191، اس پہ کال کر کے انیشل ٹیسٹ کے جو میرے نوٹس ہیں یہ آپ کو چاہیے کہ آج ہی منگوا لیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ان نوٹس سے، اور میکسیمم جتنے بھی کویشچنز ابھی آج کل آ رہے ہیں انہی نوٹس سے آ رہے ہیں، اور جو اسٹوڈنٹ ٹیسٹ دے رہے ہیں 146 PM لانگ کورس کے اسپیشلی، وہ مجھے فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں کہ سر آپ کے نوٹس کی وجہ سے ہم نے ٹیسٹ کلیئر کر لیا الحمدللہ۔ آج کل ٹائم سب نے بچانا ہوتا ہے اور اسمارٹ ورک کا زمانہ ہے۔ چیز وہ پڑھیں، اسٹڈی وہ کریں جو آپ کو نفع دے، جو فائدہ دے، جو آپ کے ٹیسٹ کو پاس کرے۔ تو یہ مختصر سی جو بکلٹ ہے یہ آپ ضرور لے لیں، ضرور پرچیز کریں۔ اس نمبر پہ کال کیجئے مجھے تاکہ آپ کو میں یہ TCS کروں، اور 24 گھنٹے میں انشاءاللہ تعالی یہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ اسی نمبر پہ میرا واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے، آپ یہ گروپ ضرور جوائن کیجئے تاکہ آپ کو فائدہ پہنچ سکے۔ اسٹارٹ میں اس میں وربل اور نان وربل پورشن ہے، اور اس کے بعد اکیڈیمک پورشن کے کویشچنز ہیں۔ ٹیسٹ نمبر 1 کی جانب چلتے ہیں۔ ٹیسٹ نمبر 1 جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، کویشچن نمبر 1 ٹیسٹ نمبر 1 کا، اولڈسٹ سٹی آف پاکستان، پاکستان کا سب سے قدیم شہر کون سے ہے؟ جی ملتان، نیچے لکھا ہوا ہے میں نے ملتان۔ کویشچن نمبر 2، 30% of 40 is 12. 90% of 90 is 81. First time Khana Kaaba built by Hazrat Ibrahim alayhi salam with his son Hazrat Ismail alayhi salam. Who embraced Islam first in men? Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Capital of Zambia is Lusaka. UNO established in 24th October 1945, San Francisco, California. City of colleges Lahore. Gateway of Pakistan is Karachi. City of textile is Faisalabad. Valley of flowers Peshawar. City of saints Multan. Land of five rivers Punjab. Badshai Masjid was built in 1673 AD by Aurangzeb Alamgir. Other name of Quran Pak Furqan. Sign 180 - X. The answer is sin X. Hazrat Khalid bin Walid Raziyallahu Ta'ala anhu accepted Islam in 6 Hijri. If yesterday was Friday, then after tomorrow is Monday. Lower point of Earth is Challenger Deep. Pak-China border agreement date 2 March 1963۔ تو یہ تھا ٹیسٹ نمبر 1۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا جو کویشچن ہے وہ ہے اولڈسٹ سٹی آف پاکستان از، یہاں سے ٹیسٹ نمبر 1 اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ شروع میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چیک لسٹ، حرف اول، وربل انٹیلیجنٹ ٹیسٹ، نان وربل انٹیلیجنٹ ٹیسٹ، ایکڈیمک ٹیسٹ، اور یہ حرف اول یا پیش لفظ جسے پری فیس بھی کہتے ہیں انگلش میں، تو یہ آپ پڑھ لیجیے، میں نے کیا لکھا آپ کے لیے، اس کو ضرور پڑھیے۔ تو بیٹا اس نمبر پہ کال ابھی کیجئے اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور یہ نوٹس آج ہی آپ منگوا لیجئے۔ آئیے سنتے ہیں لیکچریٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج میں نے انیشیل ایکڈیمک کلیئر کر لی ہے، اور آپ کو میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سر عمران کے نوٹس کو منگوائیں، کیونکہ تقریباً 95% پیپر سر کے نوٹ سے آیا تھا۔ مجھے سر نے اس بارے میں کرنے کا کچھ بھی نہیں کہا۔ میں آپ کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ جو بھی لڑکے جن کا انیشیل ابھی ہونے والا ہے وہ نوٹس ضرور منگوائیں، اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جس نے یہ نوٹ سے تیاری کی ہے وہ ضرور پاس ہوگا انشاءاللہ۔
Assalamu alaikum. My name is Mohammad Ayub Ali and I am from Punjab, लाठियांवाला 194 RP. आज की हमारे इस वीडियो का उन्वान है हिम्मत मर्दां मदद खुदा, यानी कि इंसान जब मेहनत करता है, हिम्मत रखता है, अपने अंदर जुर्रत रखता है, हौसला मंदी का मुजाहरा करता है, तो अल्लाह ताला की ज़ात की मदद उस इंसान के साथ शामिल हो जाती है। अल्लाह ताला की ज़ात बरकत डाल देती है हर उस काम में जो वो मेहनत और दिल लगी से करता है, और वो आखिरकार अपने मकसद में कामयाब भी हो जाता है। हमें अपने मकसद को हासिल करने के लिए समुंदर की तर्ज पर चलना होगा। जैसे समुंदर अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहता है, मुसलसल अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहता है और अपने मकसद और अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। इसी तरह हमें अपनी ज़िंदगी में तसलसल पैदा करना होगा, मुसलसल मेहनत का, मुसलसल हिम्मत का, मुसलसल जुर्रतमंदी का। तभी हम अपने मकसद तक, अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे और कामयाबी से सरफराज होंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेहनत करने वाला मेरा दोस्त है। अल्लाह ताला मेहनत करने वाले को अपना हबीब रखते हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तू हीला कर, मैं वसीला बनूंगा। तू हीला कर, मैं वसीला करूंगा, यानी कि तू मेहनत कर, कामयाबी से सरफराज करना मेरा काम है। तो हमें मेहनत करनी चाहिए। जब हम नाकाम होते हैं तो हमें दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए, बल्कि फिर एक नई लगन से, एक नए नज़रिए से हमें दोबारा मेहनत करनी चाहिए और अपने मंजिल की तरफ गामजन होना चाहिए। यही एक ज़िंदगी का असल मकसद होना चाहिए। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुज़म्मिल फ़याज़ है और मैं मुल्तान से हूँ। जो मेरा आज का टॉपिक है वो ये है कि हिम्मत मर्दां मदद खुदा, यानी कि जब एक इंसान, एक मर्द को एक ज़ात अपने अंदर एक हिम्मत, एक जज्बे और जुर्रत को जगह देता है तो उसकी मदद खुदा करता है। और कुरान मजीद में भी है कि अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, और अल्लाह ताला उनको देता है जो कि कोशिश करते हैं। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए और हिम्मत और जुर्रत से काम लेना चाहिए। मैं अब अपने सहाबा कराम की मिसाल देना चाहता हूँ जो हमारे रसूल गुज़रे कि जंगों के अंदर उन लोगों के पास ज़्यादा सामान नहीं था, ज़्यादा क़ुव्वत नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके पास एक चीज़ थी कि उनके पास हिम्मत थी, जुर्रत थी, और इस वजह से वो एक मुसलमान 10 कुफ़ार पर भारी होता था। और इसी तरह आज के इस दौर के अंदर अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर जुर्रत है, बहादुरी वाला अंसर है, तो यकीनन अल्लाह ताला आपकी इसमें मदद करता है, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतरीन है और वो देने वाली ज़ात है। उसे पता होता है कि किस इंसान को कहाँ देना और किस इंसान का रिस्क कहाँ लिखा है। तो अब जिस भी शोबे के अंदर जहाँ वहाँ अपने 100% पुट करें और मेहनत करें, हिम्मत दिलेरी का साथ कभी भी ना छोड़ें, हमेशा उम्मीद पर कायम रहें, एक अच्छे के लिए उम्मीद रखें और अच्छी चीज़ें करें, तो अल्लाह ताला आपका सफ़र आसान कर देता है। बेशक जितनी भी मुश्किलात आती हैं, लेकिन वो मुश्किलात आप इजीली झेल लेते हो, वो मुश्किलात आपको मुश्किलात नहीं लगती, वो आप इजीली हल कर जाते। तो हिम्मत मर्दां मदद खुदा, यानी आप खुद ही अपने अंदर ठान लें कि मुझे ये करना है, तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। आप एक स्टेप आगे चले, अल्लाह ताला 100 कदम आपके आगे बढ़ा देगा। लेकिन ये है कि जो आप एक स्टेप उठा रहे हो वो ठीक हो और आपका जो फ्यूचर उसमें बन सके, ना कि आप एक गलत कदम उठाएं और ये सोचें कि अल्लाह ताला आपकी इसमें मदद करेगा। तो आप अपनी नियत साफ़ रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी हर चीज़ के अंदर मदद करेगा। हिम्मत मर्दां मदद खुदा। मेहरबानी। Rahim. My name is Sajid Hussain. I am from Gilgit Baltistan. Gentlemen, आज सर इमरान ने जो हमें टॉपिक दिया है वो है हिम्मत जवां मदद खुदा। देखिए, सबसे पहला क्राइटेरिया ही यही है, आप जहाँ पे भी चले जाएं स्ट्रगल्स करनी पड़ती है। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया हुआ है कि लैसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही कुछ मिलेगा वो जो मेहनत करेगा। अब हमारे बहुत सारे जेंटलमैन घबराए जाते हैं कि हमने तो मेहनत की थी मगर हमें मिला नहीं। देखिए, इस हवाले से मैं एक चीज़ आपसे जो है शेयर कर लूँ, क्लैरिफाई कर लूँ कि आपको मेहनत करनी चाहिए। आपने अपनी एक टारगेट सेट की, उस पे मेहनत की, लेकिन वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिला। रिज़ल्ट आप अल्लाह ताला पे छोड़ें। अगर अल्लाह ताला आपको नवाजता है तो उसमें जो है क्या है, बरकत है। अल्लाह ताला अगर आपको नवाजता है तो अल्लाह ताला की रहमत है, बरकत है। अगर अल्लाह ताला आपको नहीं नवाजता तो उसमें हिकमत है। अल्लाह ताला चाहता है कि आप किसी और ज़रिए जो है इस अपने टैलेंट को किसी और जगह पे जो है अच्छा एक्सपोज कर ले। इससे पहले जिस जगह पे आप जो पहले अटेम्प्ट करना चाह रहे थे, मे बी पॉसिबल उसके बाद आपको एक और जगह पे उससे दुगनी जो है शोहरत मिल जाए, उससे दुगनी अच्छी तरक्की मिल जाए। इस तरीके से हम बचपन में बहुत सारी कहानियाँ सुनते हुए आ रहे हैं। जैसे एक कौवा था, वो बहुत प्यासा था, इधर उधर घूमा,
उसको पानी कहीं मिला ही नहीं, पानी का कोई ज़र्रा भी उसको जो है नज़र नहीं आया। दूर चला जाता है एक बाग में, उसको वहाँ पर आखिर में एक जार नज़र आता है, जार की जो है नेक बिल्कुल लंबी सी थी, तो वहाँ पे वो देखता है तो वहाँ पे पानी के कुछ जो है ख़तरे मौजूद होते हैं। तो अब वो सोचता है, क्रिटिकल थिंकिंग करता है, सोच विचार करने के बाद उसे आखिर जहन में आ जाती है कि यार यहाँ पे मैं जो है थोड़े बहुत यानी पत्थर के छोटे छोटे पत्थर फेंकूँ, जिसे हम यानी कैंकर कहते हैं। टेबल से वो वहाँ पे फेंक देता है, आखिरकार जो है पानी की सतह ऊपर आ जाती है, वो पी जाता है, अपनी प्यास को बुझा देता है। तो मतलब ये है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। जब हम अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला ज़रूर आपको इसका सिला दे देगा। अल्लाह ताला के यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं, इस बात को हमेशा से याद रखना। जब भी आप मेहनत करते हैं, जब भी किसी टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं, आपके पास सबसे पहले जो है आपके पास ये सोच होनी चाहिए कि अल्लाह ताला अगर अता करे तो इसमें बरकत है, नहीं अता करता तो हिकमत है। अल्लाह ताला आपको आजमाना चाह रहा है, अल्लाह ताला आपकी सब्र को आजमाना चाह रहा है। देखिए ना, सब्र अय्यूब, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो है सब्र किया, इसके बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कितनी नवाजा। इसी तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आप सबको पता है मिस्र में जो है ग़ुलामी करनी पड़ी, जो है ग़ुलाम था और उसको जो है मिस्र में बेचा गया, लेकिन बाद में अजीज़ मिस्र बन के आया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में अगर अल्लाह ताला रिज़्क़ पहुंचा सकता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से बचा के उस आग को गुलिस्तान में कन्वर्ट कर सकता है, तो कुन फयकुन का मालिक है। उसने ख़ुद इरशाद फरमाया हुआ है कि इंसान को वही कुछ मैं दे दूँगा जो वो मेहनत करेगा। मगर ये है कि जब हम मेहनत करें, लेकिन इसके साथ साथ हमारा अक़ीदा मजबूत होना चाहिए, अल्लाह ताला हमें ज़रूर दे देगा, ज़रूर नवाजेगा। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आप मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शाहिद राजपूत है और मेरा ताल्लुक टंडवा डिस्ट्रिक्ट सांगड़ से। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि इंसान के हाथ में सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रगल लिखी है, सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत लिखी है, क्योंकि मेहनत करने से ही इंसान कामयाब होता है। अगर इंसान के अंदर ये सोचे कि वो बैठे बिठाए अपने मकसद को हासिल कर लेगा या अपने एम्स को हासिल कर लेगा, तो मैं समझता हूँ कि वो इसकी सिर्फ़ और सिर्फ भूल है, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि वो एक नफ्सियाती इंसान है। और उसकी अगर इस तरीके की सोच है कि मुझे बैठे बिठाए ये चीज़ मिल जाएगी, वो चीज़ मिल जाएगी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन होता जाएगा, वो अपने मकसद को, अपने मोराल को लो करता जाएगा और लोगों की नज़रों में गिरता जाएगा, क्योंकि उसमें ना कुछ काम करने की सलाहियत है, ना कुछ मेहनत करने की सलाहियत है, तो वो कामयाब नहीं हो सकता। सबसे पहले इंसान को एक मेहनत कश इंसान बनना चाहिए, क्योंकि अपने मकसद को हासिल करने के लिए आप लोग दिन रात एक करते हैं। अगर आपका मकसद है ना, अगर आपकी मकसद है और उस मकसद को हासिल करने के लिए दिनों रात एक कर दें, क्योंकि जो आपका मकसद है उसमें अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। याद रखें कि अल्लाह किसी भी मेहनत को रायगा नहीं जाने देता और किसी भी इंसान के स्ट्रगल को कभी भी रायगा नहीं जाने देता। अगर आप लोग एक सच्चे दिल से, सच्चे ईमान से अल्लाह पाक की इबादत करें और अपने एम्स को हासिल करने के लिए स्ट्रगल करें, तो आप अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। और याद रखें कि अल्लाह की जो मखलूक है, जो जिनको भी ज़रूरत होती है, जो आपके आसपास करीब जो भी आपके मुस्तहिक अफराद हैं, जो गरीब लोग हैं, तो उनकी भी दिन ब दिन या फिर हफ्ते में एक मरतबा, महीने में एक मरतबा तो मदद कर दिया करें, ताकि वो उनकी जो दुआएं होती हैं वो आपकी कामयाबी के लिए एक ज़रिया बन सकते हैं और आप अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर इंसानों के अंदर, अगर हमारे मुसलमानों के अंदर ख़ास तौर पे ये सोच आ गई, तो हमारी जो मुस्लिम रियासत है, हमारी जो इस्लामी रियासत है, वो कामयाब हो सकती है। सिर्फ़ और सिर्फ हमें ईमानदार होने की देर है और हमें एक मेहनत कश इंसान बनने की देर है। तो हमारी जो इस्लामी रियासत है, मैं समझता हूँ कि इस्लामी रियासत ऐसी मजबूत रियासत बन जाएगी कि अगर हर एक इंसान एक दूसरे के बारे में सोचने लग जाए और अल्लाह का खौफ उसके अंदर आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि वो अपने मकसद में नहीं बल्कि आखिरत भी अपने नाम कर लेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये इंसान का स्ट्रगल होना चाहिए, ये इंसान का एम होना चाहिए कि वो एक अच्छा इंसान बने और एक अच्छा इंसान बनने के साथ वो अपने एम्स को पूरा करे, ताकि उसकी जो आखिरत है, उसकी जो ज़िंदगी है वो संवर जाए और जो उसके जो पेरेंट्स हैं उनकी दुआएं, उनके नेबर्स की दुआएं, तो वो उनके साथ रहें। तो मैं समझता हूँ कि ये हर इंसान की एक पॉजिटिव यही सोच होनी चाहिए। दोस्तों ये मेरा आज का टॉपिक था, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निम्रा मुनीर है और मैं हवेली लखा डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा से बिलोंग करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हिम्मत मर्दा मदद खुदा। बाज़ औक़ात ज़िंदगी हमें ऐसे मराहिल में लाकर खड़ा कर देती है जहाँ इंसान को सिर्फ़ अपने अलावा कोई नहीं समझ सकता, और ये ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन मरहला होता है। उस वक़्त में सब साथ छोड़ जाते हैं, मगर इंसान का वो नाकामी से कामयाबी का सफ़र होता है। उस वक़्त सिर्फ़ अगर उम्मीद लगाई जा सकती है तो वो खुदा ताला की ज़ात है।
उस वक़्त में भी इंसान को हिम्मत और हौसला से हर चीज़ को बर्दाश्त करना चाहिए, तब ही हम कामयाब हो सकते हैं और खुदा की मदद हासिल कर सकते हैं, क्योंकि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। जो लोग अपनी कामयाबी दूसरों में ढूंढते हैं और दूसरों पर इन्हिसार करते हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अगर कामयाब होना है तो सिर्फ़ और सिर्फ इंसान को खुद अपनी मदद करनी चाहिए और ख़ुद पर भरोसा और एतमाद करना चाहिए। मदद खुदा की चाहिए तो खुद पर इन्हिसार कर, मदद खुदा की चाहिए तो खुद पर इन्हिसार कर, ज़िंदगी में सिर्फ़ खुद पर एतबार कर, सिर्फ़ खुद पर एतबार कर। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।